We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 3. Nidraya riyate naktam vyavayena cha vavayah divacharthe haya rajan kutumba bharanena va. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. The lifetime of such an envious householder is passed at night, either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. Purport: the present human civilization is primarily based on the principles of sleeping and sex indulgence at night and earning money in the day and spending the same for family maintenance. Such a form of human civilization is condemned by the Bhagavat school. Because human life is a combination of matter and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter. The knowledge concerning this is called Atma Tattva. Those men who are too materialistic are unaware of this knowledge and are more inclined to economic development for material enjoyment. Such materialistic men are called karmis or fruitive laborers, and they are allowed regulated economic development or association of women for sex indulgence. Those who are above the karmis, that is the jnanis, the yogis and the devotees, are strictly prohibited from sex indulgence. The karmis are more or less devoid of Atma Tattva knowledge, and as such their life is spent without spiritual profit. The human life is not meant for hard labor, for economic development, nor is it meant for sex indulgence like that of the dogs and hogs. It is specially meant for making a solution to the problems of material life and the miseries thereof. So the karmis waste their valuable human life by sleeping and sex indulgence at night, and by laboring hard in the daytime to accumulate wealth, and after doing so they try to improve the standard of materialistic life. The materialistic way of life is described herein in a nutshell, and how foolishly men waste the boon of human life is described as follows. Om Jnanathimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurav Shetaf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. शुकदेव गोस्वामी ये वचन परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति मरणासन है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। मरणासन मतलब जो मरने के लिए जा रहा है, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के अंदर आपकी तक्षक के द्वारा डसे जाने से मृत्यु होगी। तो इसलिए उन्होंने अपना राज्य पाठ की जिम्मेदारी छोड़ करके, और 7 दिन ही बाकी हैं, तो मुझे ये सब अभी मरने की मुझे तैयारी करनी है, ये परीक्षा आ गई है, पूरी तरह से इसकी तैयारी करनी है, ऐसा विचार करके शुक्रताल एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर वो बैठे और सभी मुनियों को आमंत्रित किए, और जगह जगह से सभी ऋषिगण एकत्र हुए, और उसमें से शुकदेव गोस्वामी परम थे। तो उनसे उन्होंने ये सब प्रश्न किए कि मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं और सामान्य लोग
कि क्या कर्तव्य है, जीवन का लक्ष्य उनका क्या होना चाहिए जिससे कि वो जीवन को सफल बना सके, मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उसके उत्तर में ये पूरी भागवतम सुनाई गई और उसमें से हम ये द्वितीय स्कंद में एक श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें कि शुकदेव गोस्वामी कर्मी लोगों के विषय बता रहे हैं। तो अलग अलग चेतना में अलग अलग मनुष्य होते हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। कर्मी, ज्ञानी, भक्त, मुख्य रूप से ये 3 श्रेणियां हैं लोगों की। ज़्यादातर लोग कर्मी हैं, बहुत कम लोग ज्ञानी या भक्त हैं। कर्मी कौन है, किनको हम कहते हैं कर्मी, शास्त्र में किसको कर्मी कहा गया है? जो इस भौतिक जगत को भोग करने का प्रयास करते हैं। उनकी विचारधारा है कि इस भौतिक जगत में हम इंद्रिय भोग करके सुखी हो जाएंगे और इसलिए अधिक से अधिक इंद्रिय भोग के संसाधनों को जुटाना यही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए वो जो भी कार्य करते हैं उसके फल से इंद्रिय भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो सकाम उनका कर्म करते हैं और कर्म के फलों में आसक्त होते हैं। तो उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे लोग क्या करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वर्तमान जो मनुष्य सभ्यता है वो ज़्यादातर ऐसी ही है, अधिक से अधिक। बहुत 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 कम लोग हैं जो ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तव में सुख कहाँ है, नित्य सुख कहाँ है। ऐसे जानकारी रखने वाले ज्ञानवान या ऐसे जानकारी के लिए प्रयास करने वाले लोग बहुत बहुत कम हैं। और भक्तगण तो बहुत कम हैं। भक्तगण मतलब जो जानते हैं कि आध्यात्मिक वास्तविक सुख भगवान की सेवा में है और इसलिए भगवान की भक्ति सेवा करते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, निद्रया रियते नक्तम। नक्तम मतलब रात्रि, निद्रया, निद्रया मतलब नींद में, बाय स्लीपिंग, सोते हुए। निद्रया मतलब सोते हुए। निद्रया रियते नक्तम, रियते मतलब व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं। तो रात में सोने में अपना उनका समय जाता है, मतलब आवश्यकता से अधिक सोते हैं। एक शरीर की आवश्यकता के लिए सोना है और एक एंजॉय करने के लिए सोना है, दोनों में अंतर है ना। तो बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि सोना परम सुख है। अगर उनको अधिक सोना मिल जाए तो सोचते हैं हाँ जीवन की संसिद्धि हो गई, बहुत अच्छा, आज हम बहुत सोए। उनको गर्व होता है आज हम 10 घंटा सोए, 12 घंटा सोए। करेक्ट, मिलते हैं ऐसे लोग हॉस्टल में, ऐसे प्राणी। यस, दिस इज़ रियलिटी। आप देखिए, आप ट्रेन में कभी जाएंगे तो रात को सोएंगे 9 बजे, 9-10 बजे, सुबह उठेंगे 10 बजे, फिर कुछ खाएंगे, फिर दोबारा सो जाएंगे, फिर उठेंगे। मतलब उनको अगर ट्रेन में है तो उनको और कुछ दिखता नहीं उनको। बस सबसे अच्छी बात है अभी ट्रेन की जर्नी का सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सोने को खूब मिलता है। करेक्ट, पूरा 24 घंटे सोते, खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना। जानवर भी यही करते हैं ना, खाना सोना और मैथुन सुख, मैथुन, दैट्स ऑल। तो ऐसे ही ज़्यादातर लोगों का जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है, खाना सोना मैथुन सुख। तो निद्रया रियते नक्तम, तो या तो सोते हैं या तो फिर क्या करते हैं, व्यवायेन च वावया, अदरवाइज सेक्स इंडल्जेंस। ये भी बहुत 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 कॉमन है। रात्रि में सब लोग सेक्स का आनंद लेते हैं, जो मिथ्या आनंद है, इल्यूजरी हैप्पीनेस है, वास्तव में आनंद नहीं है। जानवर लोग दिन में और रात में ऐसे नहीं देखते हैं, लेकिन मनुष्य लोग थोड़ा रात में ही ज़्यादा सेक्स इंडल्जेंस में भाग लेते हैं। आजकल तो शायद
ये ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट। तो ये मैथुन सुख भी बहुत बड़ा सुख ऐसे लोगों को दिखता है। और सामान्य रूप से हम देखते हैं लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, मेल फीमेल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और आज की जो सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इसको प्रोपोगेट किया जाता है। स्कूल लाइफ से शुरू करके कॉलेज लाइफ, तो सबके दिमाग में अपोजिट सेक्स के ही विचार घूमते रहते हैं। सो वो सब यही है, निद्रया रियते न व्यवा ये न चावया, सेक्स 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 के बारे में ही सोचना। तो ये सब चीज़ें ठीक है, सेक्स एक अगर उसको संतान उत्पत्ति करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो धर्म के अनुसार जो इस प्रकार से संतान उत्पत्ति करने के लिए जो सेक्स इंडल्जेंस है वो गलत नहीं है, वो पायस एक्टिविटी है। इस विचार से कि गृहस्थ आश्रम के अंदर संतान प्राप्त की जाए और उन संतानों को भगवान का भक्त बना करके जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का ज्ञान उनको दिया जाए, सो दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग के तो ये केवल एक इंद्रिय भोग का साधन है, और संतान होना वो अनवांटेड बाई प्रोडक्ट है जिसको रोकने का प्रयास करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन से और अबॉर्शन से। आजकल तो ट्रेंड है कि लोग संतान चाहते नहीं हैं, सोचते हैं हम बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे। वाई टू वेस्ट आवर बॉडी बाई प्रोक्रिएटिंग, यू नो अबाउट दैट। बहुत से माता पिता ये हैं, पति पत्नी जो भी बच्चे संतान पैदा नहीं करना चाहते, तो उनको ये कितनी अननेचुरल हमारी सोसाइटी होती जा रही है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़, वी विल हैव टेस्ट ट्यूब बेबीज़। स्त्रियां नहीं रहीं। स्त्रियों के लिए एक स्वाभाविक था उनको इसमें कि हमारी संतान होगी। और अभी स्त्रियों को तो ज़्यादा कंपनीज़ में जॉब करने की इच्छा है, बच्चों को पैदा करने की इच्छा नहीं है। आपके एलन सिटी कॉलेज में सब बाहर बनाए ना, सब ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, तो आप उससे देख सकते हैं क्या ट्रेंड है। उनका ट्रेंड है कि मनुष्यों की, पुरुषों की तरह से ही हमें कार्य करना है, भेद नहीं होना चाहिए, सबके एक जैसे काम होना चाहिए। उनको भी जॉब करना है, हमें भी जॉब करना है। वो बच्चे पैदा नहीं करते, हम क्यों पैदा करें? ये हीनता है। सो दिस इज़ द मैडनेस विच इज़ गोइंग ऑन। सोसाइटी में सबका अलग अलग रोल है। प्रकृति ने सबको अलग अलग शरीर दिया है और उसका महत्व है अलग अलग कार्य का, लेकिन ये सब नहीं समझ रहे हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा है। किस लिए प्रोपेगेंडा है? बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण है सेक्स इंडल्जेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब धर्म का पालन होगा तो स्त्रियां तो वैश्या की तरह से बाहर नहीं घूमेंगी और घर के अंदर प्रोटेक्टेड रहेंगी और अपने गृहिणी के रूप में अपना कार्य करेंगी और पतिव्रता होंगी। लेकिन जो लोग कामी होते हैं, पुरुष, वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं एक स्त्री से, इसलिए उनको चाहिए कि अधिक से अधिक स्त्रियां वैश्या की तरह से रहें, जिससे कि वो लोग खूब उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। इसलिए वो लोग प्रोपेगेट करते हैं कि स्त्रियों को घर में नहीं, उन स्त्रियों को बाहर होना चाहिए, सो दैट दे कैन फ्रीली मिक्स विद देम। दैट्स एट द रूट। और वो लोग फिर स्त्रियों को भ्रमित करते हैं, अरे देखो तुम्हारा शोषण तुम घर के अंदर बंद करके रखा है, बाहर जाओ खूब, यू शुड आल्सो एंजॉय, सो दैट एक्चुअली दे कैन एंजॉय। लेकिन वो ऐसा प्रोपेगेट करते हैं कि हर चीज़ ऐसी होती है। अमेरिका जो है वो सारे वर्ल्ड के ऊपर एंटी टेररिज्म का नारा दे करके सब मिडल ईस्ट में बम्बार्ड करता है, लेकिन कारण अंदर से कुछ और होता है। कारण है उसको ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा करना है, और इवन संभावना है कि जो 9/11
में जो ट्विन टावर्स को गिराया, वो भी प्रोबेबली टेररिस्ट नहीं, बट दैट वाज द वर्क ऑफ अमेरिका इटसेल्फ, कि एक बड़ा नाम दे दिया जाए कि बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और इन टेररिस्ट को मारना है, और इसलिए फिर हमें सारे मिडिल ईस्ट को ख़त्म करना है, अफगानिस्तान ख़त्म करना है, जिससे कि सारे ऑयल रिजर्व्स, उसके बहाने हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो संसार में ऐसा बहुत कुछ चलता है, बोलने के लिए कुछ है, कारण अंदर कुछ है। क्योंकि जहाँ पर पैसा जीवन का लक्ष्य बन जाता है, वहाँ पर सेल्फिशनेस, स्वार्थ ही जीवन का केंद्र बन जाता है, इंद्रिय भोग। और जहाँ स्वार्थ, इंद्रिय भोग जहाँ बढ़ जाता है, वहाँ पर नैतिकता ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर आदमी हवस के कारण नैतिकता का ध्यान नहीं रखता है। आप देखिए, जो लोग भी इंद्रिय भोग यही जीवन का लक्ष्य होता है, उनके लिए उनको ज़बरदस्ती बहुत कठोर नियमों के द्वारा उनको संभाल के रखना पड़ता है ना। ट्रैफिक नियम, हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज के द्वारा बांधने की जरूरत पड़ती है, और फिर भी वो लोग जैसे ही मौका मिले उस नियमों से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए पुलिस वालों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनका इच्छा नहीं है नियमों में रहने का। उनका इच्छा तो यह है कि सब कुछ नियम नहीं होने चाहिए, जस्ट फ्रीडम, वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू एक्सप्लॉइट अदर्स। तो ऐसी सोसाइटी हो गई है। जानवर से बदतर, क्योंकि जानवर जो हैं वो भी इंद्रिय भोग ही चाहते हैं, लेकिन वो प्रकृति के नियमों के द्वारा स्ट्रिक्टली बंधे हुए हैं। जैसे जानवरों को अगर सेक्स इंटेलिजेंस करना है तो नेचुरली वो उसका एक समय है, ऋतु होती है, समय होता है, तभी वो आकर्षण होगा, तभी देन दे कैन प्रोक्रिएट, अदरवाइज नो। लेकिन मनुष्यों के अंदर वो प्रकृति के नियमों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते। जानवर की बुद्धि शक्ति वो इतनी विकसित नहीं है, इसलिए आप देखिए जानवर जो हैं वो प्रकृति के नियम के अनुसार काम करते हैं। मनुष्य की बुद्धि विकसित है, इसलिए वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है। करेक्ट। जैसे खाना है, तो अभी सबको खाना है, तो चिड़िया जो है या जानवर जो है, जितना उनको पेट के लिए चाहिए उतना खाएंगे और उस खाने की लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 1 साल का मुझे इकट्ठा करके रखना है, ऐसा सोचेंगे। उनको बस आज का मिलना चाहिए, अभी का मिलना चाहिए बस, या मैक्सिमम कुछ नेक्स्ट 1 आध दिन का। करेक्ट। इसे जो भी लड़ाई होगी वो होगी आज का, तात्कालिक मिलने की लड़ाई होगी। लेकिन मनुष्य की लड़ाई कैसी होगी? पूरा इकट्ठा करके रख देना, दूसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। तो इसलिए मनुष्य जो है जानवर से भी ज़्यादा हिंसक हो जाता है यदि वो इंद्रिय भोग को जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जानवरों में लड़ाई नहीं होती इतनी जितनी मनुष्य में होती है। करेक्ट। जानवर तो इतने बड़े युद्ध नहीं करते हैं, मनुष्य युद्ध करते हैं बड़े बड़े। करेक्ट। ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर वो मनुष्य जीवन में देखा जाता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? यदि मनुष्य के अंदर बहुत हाईली डेवलप्ड इंटेलिजेंस है, यदि उसको हायर पर्पस के लिए डाइवर्ट नहीं किया जाएगा तो वो रॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ होगी, और उससे सारी मनुष्य जाति का भी और पूरे बाकी सब का भी नुकसान होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को हायर पर्पस क्या है? बर्थ और डेथ के चक्र से निकलना, भगवान को समझना, जो वास्तविक सुख है, नित्य सुख है, ये बॉडी से लिबरेट होना। प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर एक चीज़ लिख रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट सोल, द होल प्रोसेस ऑफ वैदिक नॉलेज इज डायरेक्टेड एट लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ मैटर। Who will explain this statement? I will read again. Because human life is a combination of matter and spirit soul, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter.
Raise your hands who want to explain this statement. अंश। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में लाइफ बाकी सब जीव है, लेकिन ह्यूमन को जो मनुष्य जीवन में उसकी बुद्धि बहुत विकसित है। नहीं, इस स्टेटमेंट को केवल एक्सप्लेन करना है। जैसे जो शरीर है वो आत्मा और मैटर और स्पिरिट से बना है। शरीर जो जीव है वो तो जो सारे वेद शास्त्र में जो भी है वैदिक नॉलेज, उनका मेन पर्पस यही है कि जो मटेरियल कॉन्टेमिनेशन का जो स्पिरिट है वो बॉडी मतलब शरीर में आ गई। बॉडी क्या मटेरियल कंटेमिनेशन शरीर में आ गया? नहीं, अपने कर्मों कारण वो बंध गए। हाँ, सोल हाँ, शरीर में। हाँ, तो जो पर्पस है नॉलेज की, हाँ, वो शरीर से फिर मुक्त हो जाए, हाँ, शरीर से निकल जाए। हाँ, ओके, गुड। सो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का कि ये हम लोग क्या हैं। हम सभी लोग दो चीज़ के कॉम्बिनेशन हैं, जड़ और चेतन। जड़ ये शरीर है और इस शरीर को चलाने वाला, इसमें चेतना को देने वाला वो है आत्मा। ये दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, कोई भी लिविंग एंटिटी, कोई भी जीवन, वो इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि दो प्रकार की भगवान की शक्तियों के मिश्रण से इस भौतिक जगत में हर जीव हर चीज़ बनी हुई है। तो चेतना जो है वो आत्मा की वजह से है, और आत्मा एक आध्यात्मिक कण है, स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो जड़ पदार्थ नहीं है। जड़ पदार्थ मतलब जिसमें चेतना नहीं है। हालांकि अभी जड़ पदार्थ में ऐसा लगता है जैसे कि चेतना है, हाथ चल रहा है, मूवमेंट होना, कुछ अनुभव होना, सेंस कुछ और कुछ क्रिया करना, इच्छा करना, ये सब किसके लक्षण हैं? चेतना के लक्षण हैं। तो अभी ये भौतिक शरीर चेतन युक्त लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि डेड बॉडी भी होती है। तो बॉडी तो डेड ही है, लेकिन अभी वो लगती है जैसे कि वो जीवंत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है जो उसको जीवंत बना देता है। जैसे कि बल्ब है, बल्ब का अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने से बल्ब जलने लगता है, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो दो चीज़ हैं। तो हम कौन है, शरीर या आत्मा? हम मतलब आत्मा, हम वी आर द सोल। बॉडी क्या है? वो हमारी एक कवरिंग है। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन क्यों आ गया? कंटेमिनेशन मतलब प्रदूषण, प्रदूषण। क्योंकि आत्मा की जो स्वाभाविक गुण है उसको ये ढक देता है, इसलिए इसको प्रदूषण कहा गया। जैसे जल जब आसमान से गिरता है और अगर उसमें फैक्ट्री का धुआं बीच में नहीं हो तो वो अपनी स्वच्छ अवस्था में यहाँ तक पहुँचता है ना। उसमें कोई उसके गुण होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, है ना। ऐसे सब उसके अपने गुण हैं, हर चीज़ के अपने अपने गुण होते हैं। लेकिन अगर वो ज़मीन के संपर्क में आती है या कोई इंडस्ट्रियल कोई पोल्यूशन होता है तो फिर वो जल जो है उसके गुण बदल जाते हैं। तो हम उसको बोलेंगे ये वाटर जो है कंटेमिनेट हो गया, प्रदूषित हो गया। तो उसी प्रकार से हम जो आत्मा है अभी प्रदूषित अवस्था में है। भौतिक गुण हमारे आत्मा के गुणों को प्रदूषित कर दिए हैं। जैसे कि आत्मा का एक गुण है कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो आत्मा को कोई मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इस भौतिक शरीर के संपर्क में आते हैं तो हमें मृत्यु का अनुभव होने लगता है। मृत्यु का बुढ़ापा का अनुभव नहीं होता है, मृत्यु का बुढ़ापा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर के संपर्क में है तो उसको भी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ये अनुभव ऐसा होने लगता है ना। बीमारी ये सब शरीर में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं है। ये आत्मा के गुण है ही नहीं। बूढ़ा होना, बीमार होना, मरना, जन्म लेना, ये सब तो शरीर को होता है, शरीर का जन्म होता है।
किसका जन्म होता है? जब हम माता के गर्भ से निकलते हैं तो क्या बना? माता के गर्भ में क्या बना? शरीर बना, आत्मा नहीं बनी। आत्मा तो उससे पहले भी थी, करेक्ट? शरीर बना। और जब मृत्यु होती है तो क्या खत्म होता है? शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। आत्मा तो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इसीलिए आत्मा के जो अपने गुण हैं, नित्यता, इटर्निटी, नो मिजरीज, नो बर्थ, नो डेथ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो प्लेसमेंट प्रॉब्लम, ये सब आत्मा के अपने गुण हैं। लेकिन ये शरीर होने की वजह से ये सारे दुर्गुण अभी हम अनुभव करने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य, वैदिक नॉलेज का पर्पस क्या है? मुक्ति, लिबरेशन। केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति प्राप्त करके या कॉलेज से मुक्ति या ये सब मुक्ति तो एक मुक्ति है दूसरी जंजीर में फंसने के लिए, दैट्स ऑल। लेकिन रियल मुक्ति है जब आत्मा शरीर बंधन से निकलती है, वो है हमारी मुक्ति, रियल मुक्ति, रियल इंडिपेंडेंस। और जब आत्मा शरीर के बंधन से निकलती है, वो कब निकलती है? जब हम वास्तव में हम कौन है इसको पूरी तरह से साक्षात्कार कर लेते हैं। और वो क्या है साक्षात्कार? कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके सेवक हैं। और जब वो हमारा संबंध जो अभी हम भूल गए हैं, जब वो पुनर्स्थापित हो जाता है, तब फिर शरीर बंधन नष्ट हो जाता है। सुसाइड करने से शरीर बंधन नष्ट नहीं होता है। कई लोग बहुत दुखी आते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो उससे क्या हुआ? और एक और शरीर मिलेगा जो और ज़्यादा उनको दुख देने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने एक और बड़ा पाप किया। ऑलरेडी बहुत पाप करने की वजह से ये शरीर मिला, अभी और एक और पाप करेंगे तो और उससे भी ज़्यादा खराब शरीर मिलेगा, खराब योनि मिलेगी, करेक्ट? इसलिए ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? नॉलेज, ज्ञान। और केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान से हाँ जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन रियल ज्ञान, परम ज्ञान, वो है भगवान की का सेवक बनना, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करना, जो भक्ति से संभव है। तो उसके माध्यम से हम शरीर बंधन से निकलते हैं। इसलिए ये है टॉप मोस्ट नॉलेज। तो इसलिए हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये रियल नॉलेज सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सक्सेस, जीवन की सक्सेस इसमें है, मनुष्य जीवन की सक्सेस। नहीं तो जानवर भी तो खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, शायद हमसे ज़्यादा आसानी से सो रहे हैं। उनको कोई एग्ज़ाम्स, उनको कोई इतना पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, उनके लिए सेक्स बहुत आसान है, दे कैन हैव सेक्स वेरी इजीली। लेकिन मनुष्य के लिए तो बहुत सारे उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। यू हैव टू मैरी। अभी शादी कौन करेगा? शादी के लिए आपको पहले बहुत कुछ, एक आपकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, तभी आपकी शादी होगी, नहीं तो कोई शादी भी नहीं करेगा आपसे, करेक्ट? लेकिन जानवरों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है कुछ, है ना? तो इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो इंद्रिय भोग तो आसानी से ज़्यादा उपलब्ध है जानवरों के लिए, करेक्ट? क्योंकि मनुष्य जीवन तो इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना है। इंद्रिय भोग उतना जितना कि केवल ज़रूरी है, उतना खाने की ज़रूरत है हमको भी, जानवर को भी, ठीक है तो खाओ, लेकिन जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, करेक्ट? जीना है इस पर्पज़ के, टू लिबरेट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस क्लचेज ऑफ मैटर। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैटर की वजह से ही सब समस्या, जानवर ये नहीं समझ सकते। जानवर के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस उसकी चेतना उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन मनुष्य की चेतना है कि वो समझ सकता है कि वाई आई शुड डाई एट ऑल, हाउ टू स्टॉप डेथ। सब लोग यही पूछते हैं, अरे आप लोग क्या ये सब बड़े बड़े एस्पिरेशंस हमारे होने चाहिए, हमें ये बनना है, हमें ये बनना है। हम कहते हैं हम सबसे बड़ा हमारा एस्पिरेशन है हाउ टू स्टॉप डेथ। और किसका ऐसा एस्पिरेशन है? हु इज़ ट्राइंग फॉर दैट? वी आर ट्राइंग फॉर दैट, हाउ टू स्टॉप डेथ। आप लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, लेकिन आपका सुख तो दुख के साथ मिला हुआ है। बट वी आर ट्राइंग फॉर प्योर हैप्पीनेस, जिसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। सो वी आर हैविंग ए बेटर एस्पिरेशन देन यू, करेक्ट? तो ये भगवद गीता भागवतम सिखाता है। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? Every woman being is equal, but we are men and
men and women, yes, and that are the animal. Why we are not equal? हम लोग समान हैं आत्मा की दृष्टि से। जानवरों में जो आत्मा है वो मनुष्य में आत्मा एक जैसी हैं, लेकिन शरीर अलग अलग हैं। तो कर्म फल के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। तो जानवर जो हैं, हम जो मनुष्य में अभी हैं, तो अगर हम जानवर जैसा जीवन जिएंगे तो फिर हमें उसी के अनुसार शरीर मिलेगा, जिससे कि हम अपनी जानवर जैसी इच्छाओं को पूरा कर सकें। शरीर क्यों मिलता है? हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म फल के अनुसार मिलता है। तो जैसा हम जीना चाहते हैं और जैसे ही हमारा कार्य होते हैं जिस प्रकार के, उसके अनुसार हमको शरीर दे दिया जाता है। इसलिए अलग अलग शरीर हैं, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। जिसको बहुत ज़्यादा मांस खाने की इच्छा है तो उसको ऐसा शरीर दिया जाता है जैसे कि जो मांस खाने के लिए उपयुक्त है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। महात्मा गांधी का तो क्या हुआ? महात्मा गांधी को क्या हुआ? वो फिर यहाँ पे अभी है कि नहीं है? महात्मा गांधी ने जो कार्य किए तो वो तो जो लिखता है वो तो शरीर के स्तर पर ही कार्य किए। तो शारीरिक लोगों के भारत को स्वतंत्र कराना किससे? आत्मा को नहीं, शासन से, एक प्रकार के शासन से। तो वो तो आध्यात्मिक स्तर पे कार्य नहीं किए, तो भौतिक स्तर पे कार्य किए। तो भौतिक ही जगत में कहीं ना कहीं उनको कोई शरीर प्राप्त हुआ होगा, किसी न किसी योनि में। बट आदमी लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, सो उसका बदली डिवोटीज का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि लोग मूर्ख हैं, उनको तो पता नहीं है। उनको तो भौतिकतावादी लोग ही उनके लिए बड़े होते हैं, इसलिए वो लोग उन्हीं को अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मवादी हैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद मूर्ख हैं। प्रभु जी, बट ये दुनिया इतना बड़ा है, सो इसमें से 100 का 100% आदमी मूर्ख है। 100 नहीं है, आप लोग कुछ हैं थोड़े से बचे। तो हम लोग भी मतलब नाम लेते हैं महात्मा गांधी। नहीं, आप तो भी नहीं आए, बाकी लोग तो महात्मा गांधी का नाम, हरे कृष्णा का नाम लेते हैं। हम तो कृष्ण का नाम लेते हैं, हम तो महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते हैं। यस, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअली कर्म योग? व्हाट इज कर्म योग? कर्म योग मतलब है जिसमें हम अपने जो भौतिक जगत में शरीर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो कार्य शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, वो कार्य को हम करते हैं और उसको भगवान को समर्पित करते हुए, जिससे कि जिससे हम कुछ प्रगति कर सकें धीरे धीरे, क्रमिक रूप से। कर्म बंधन से धीरे धीरे निकलने का रास्ता है कर्म योग। कैसे? भगवान के निर्देश के अनुसार अपने शरीर को मेंटेन करना है, जो भगवान सबको अलग अलग कार्य दिए हैं उसके अनुसार, और उनके फलों, जो उनके फल हैं, उनको एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि केवल इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही उसका उपयोग करना है। और उन फलों को
भगवान की सेवा में लगाना है, इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म करना है, लेकिन जब उसको भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान से हमको लिंक करने में हेल्प करता है, इसलिए वो कर्म योग हो गया। योग मतलब जोड़ना, तो वो कर्म जो हमको भगवान से जोड़े, कर्म योग। तो कैसे जोड़ते हैं कर्म हमको भगवान से? जब हम भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार कर्म करते हैं और उन कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, वी ऑफर इट टू कृष्ण, देन इट बिकम्स कर्म योग। No? As an example, suppose I am a doctor or I am a cricketer. You are a what? Dictator? I am a cricketer. Or Cricketer. Okay. Or I am a doctor or in any other profession. So I am doing कर्म योग according to शास्त्र. हाँ, अगर आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली स्पीकिंग वो प्रोफेशन जो है शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए, वो पायस होना चाहिए, पुण्यशाली, यानी शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए, पाप में कर्म नहीं। अभी चोर भी चोरी कर रहा है अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए, करेक्ट, लेकिन वो कार्य तो शास्त्र अनुमोदित नहीं है, इसलिए वो कर्म योग नहीं, वो विकर्म कहलाएगा। लेकिन अगर हम जो कार्य कर रहे हैं उसको हम समझ के कर रहे हैं कि ये कार्य अल्टीमेटली भगवान के द्वारा दिया गया है, वो कार्य ऐसा होना चाहिए, या तो और उसके हमें फलों को भगवान को अर्पित करना। सपोज समझ डॉक्टर, तो ठीक है, समाज में एक आवश्यकता है डॉक्टर्स की, चोरों की आवश्यकता नहीं है समाज में, लेकिन हाँ डॉक्टर्स की तो आवश्यकता है। तो ये शरीर की आधारभूत आवश्यकता है, उसको वो प्रोक्योर करा रहे हैं। तो और उसमें भी वो ऐसे कार्य नहीं करें जो कि शास्त्र अनुमोदित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शंस। सो अगर वो अपना एक शरीर का, लोगों के शरीर को इलाज करते हैं और इस चेतना में कि ये मेरा एक समाज के अंदर एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि सबका अलग अलग उत्तरदायित्व है, इसको मैं कर रहा हूँ भगवान के निर्देश के अनुसार, और मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है कि मैं जो इस प्रोफेशन से जो मुझे मिल रहा है उसको मैं एंजॉय करूं और उसको खूब पैसा ज़्यादा कमा कर खूब एंजॉय करूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो भी मुझे इससे प्राप्त हो रहा है उससे मुझे अपने शरीर को मेंटेन करना है, और जो उससे प्राप्त हो रहा है उसको उससे भगवान की सेवा में लगाना है, और तो इसको हम कर्म योग कहेंगे अगर ऐसी चेतना में कोई डॉक्टर कार्य करता है तो मेनली इट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग। नॉट एवरी डॉक्टर इज़ अ कर्म योगी, डेफिनेटली। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।